Hello students. So let's discuss about oogenesis. Oogenesis. Oogenesis also called as ovogenesis. Ovogenesis. Oogenesis is the male version of gametogenesis. It is the male version of gametogenesis in which ovum produce, in which ova are produced from the cuboidal germinal epithelial cells. It is the process in which ova are produced from cuboidal germinal epithelial cells of ovary. It is the male version of gametogenesis. It is one type of gametogenesis. It is female gametogenesis. It is the female version of gametogenesis, that is oogenesis. It is one type of meiosis in which haploid cells are formed. It is a type of meiosis in which female gametes or female sex cells are formed. Oogenesis starts from the embryonic stage. Oogenesis has three stages: multiplication phase, growth phase and maturation phase. So let's see oogenesis has three stages: multiplication phase, growth phase and maturation phase. Multiplication phase, growth phase and maturation phase. देखिनियो multiplication phase, growth phase and maturation phase. हम टिके डायग्राम करिवा. These are the cuboidal germinal epithelial cells. Cuboidal germinal epithelial cells. They are diploid cells. These cells are diploid cells. मतलब ये 46 टा क्रोमोसोम था. Cuboidal germinal epithelial cells divide it होची multiplication it होची by mitotic cell division. This is multiplication phase. इटा हला multiplication phase. इले माने भलो भाबे देखिनियो. इटा होची multiplication phase in which cuboidal germinal epithelial cells or mother cells or spermatogonias, mother cells or the parent cells divide mitotically to produce many generation of cells, cuboidal cells. Many generations of diploid cells are called as oogonia. These are oogonia. These generation of cells are called as oogonia. So this is multiplication phase. Multiplication phase is a type of mitosis. This event occurs during embryonic stage. This is embryonic stage. इस सब घटना डाको टोटल एम्ब्रियोनिक स्टेज रे होउची. काइना मु प्रथम रु ही कहिची oogenesis टा स्टार्ट होउची एम्ब्रियोनिक स्टेज रु. एटा एम्ब्रियोनिक स्टेज रे मल्टिप्लिकेशन हेला. देन हमर एटा oogonia डाको. वर्तमान
एटा को मल्टीप्लिकेशन न होई केवल एटी साइज रे बड़ होला। तो एटा हला ग्रोथ फेज। भला आप देखिनो दिस इज ग्रोथ फेज। एटा साइज रे केवल बड़ होला। तो ग्रोथ फेज टा ये देखो एटा साइज रे केवल बड़ होला एवं याकू कहबो प्राइमरी oocyte, दैट इज प्राइमरी oocyte, दिस कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte टा देखो फॉर्मेशन जो होची एम्ब्रियोनिक स्टेज पूर्व फॉर्मेशन होची एटा होची एटा हला बाथ, एटा हला बिफोर एम्ब्रियोनिक स्टेज, एटा हला बिफोर एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये होची प्यूबर्टी। तो प्राइमरी oocyte formed during embryonic stage. This is diploid cells. यार chromosome number होची 46. Then primary oocyte undergoes meiosis 1. This is meiosis 1. Meiosis 1. Primary oocyte undergoes meiosis 1 or first meiosis to produce a secondary oocyte, and a fast polar body. This is fast polar body. Fast polar body or polocyte. Both are haploid cells. Secondary oocyte also haploid cell and fast polar body also haploid cells. This is fast meiosis. This is the diploid cell, primary oocyte, and both are the secondary oocyte and the fast polar body are haploid cells. So fast meiosis is reductional. In different type of mammals, growth phase is the longest phase. In different type of mammals, growth phase is the longest phase, but in human, the fast meiosis is the longest phase. Because एटा हला देखो एटा हो पुबर्टी। ए पुबर्टी रे एटा गोटे टेम्परेरी हॉल्ट करि थाए। पुबर्टी रे गोटे टेम्परेरी हॉल्ट करि थाए। एटा आगु को आउ जाई न थाए। एटा हला डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ये स्टेज टा हला डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। प्राइमरी oocyte टा एटा सेकेंडरी oocyte की आ फास्ट पोलार बॉडी की डिवाइड हुए, बट ए सेल डिवीजन रो मझी रे गोटे जगह रे होल्ड करे, सेटा हला डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो एठो ए जाके एटा होची लॉन्गेस्ट फेज टा। आ एटा हला माने आफ्टर पुबर्टी, एटा हला बिफोर बार्थ, एटा होची लॉन्गेस्ट फेज। देन सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन समय रे सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन परे एटा कहबो ना पुनी सेकेंड डिवीजन को से जीवो। गोटे हबो सेकेंड पोलार बॉडी आ गोटे हबो ओवम। ये देखो एटा हला मैच्योर्ड ओवम, एटा होची सेकेंड पोलार बॉडी। गोटे हला मैच्योर्ड ओवम, गोटे हला सेकेंड पोलार बॉडी। किंतु द्वितीय एटा होची मेयोसिस 2। दिस इज मेयोसिस 2। मेयोसिस 2 टा देखो एथरे एन हला, ये मधे एन हला थिला सेकेंडरी oocyte रे एन थिला, मतलब 23 टा क्रोमोसोम थिला। सेकेंड पोलार बॉडी रे मधे 23 टा हला क्रोमोसोम एवं मैच्योर्ड ओवम रे मधे 23 टा क्रोमोसोम हिला। तो सेकेंड मेयोसिस टा एटा हला मेयोसिस 2 होची इक्वेशनल बा माइटोटिक मेयोसिस। एटा काइना एन रु एनएन हेची। एठी फास्ट मेयोसिस टा 2n थिला हेची nn, एटा हला रिडक्शनल। किंतु मन रखो सेकेंडरी जो मेयोसिस 2 एटा मध्ये आ गोटे जगह होल्ड करे। एटा होची सेकेंड होल्ड बा सेकेंड आरएस स्टेज। एटा सेकेंड आरएस स्टेज जोटा कि
मेटाफेज एटा मेटाफेज रे अरेस्ट हुई एटा मेटाफेज स्टेज रे अरेस्ट हुई मेटाफेज स्टेज रे अरेस्ट हिथिबो जेतले स्पर्म ए सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइज करिवो सेतले मेटाफेज 2 टाकू से ब्रेक करिके आगु जीवो ताले मेटाफेज 2 रे सेकेंडरी oocyte अपेक्षा करिथाए स्पर्म जेतले फर्टिलाइज करिवो सेकेंडरी oocyte की ये मेटाफेज 2 टाकू ब्रेक करिके एटा मैच्योर्ड ओवम होबो गोटे सेकेंड पोलर बॉडी होबो तबे हम देखिबा जे oogenesis रे गोटे ओवम लास्ट को फॉर्मेशन होची फाइनली गोटे ओवम फॉर्मेशन होबो एठी दीटा सेकेंड पोलर माने दीटा पोलर बॉडी फॉर्मेशन होची एवं बेले बेले कोन होची ना फास्ट पोलर बॉडी डिवाइड हेगी दीटा पोलर बॉडी मध्ये हो जाए तो अतएव एठी दीटा पोलर बॉडी और ये गोटे पोलर बॉडी बेले बेले तीनटा पोलर बॉडी मध्ये फॉर्मेशन होची सो गोटे oogenesis रे आइदर दीटा किंबा तीनटा पोलर बॉडी फॉर्मेशन होची आ गोटे ओवम फॉर्मेशन होची अच्छा तो oogenesis टा स्पर्माटोजेनेसिस अपेक्षा निश्चित भाव में लंगर रहिबो आउ थरे बुझी दूची oogenesis रे तीनटा फेज अछि फर्स्ट ला मल्टीप्लिकेशन फेज सेकंड ला ग्रोथ फेज थर्ड ला मैच्योरेशन फेज मल्टीप्लिकेशन फेज रे कोन होची ना एगुडा को क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल रो रहितला एडा को मदर सेल बिली कहंती ओवम मदर सेल बिली कहंती एडा को डिवाइड होची माइटोटिकली डिवाइड होवा परे बहुत सारा सेल प्रोडक्शन करंती एमानु को हमें oogonia बिली कहबा oogonia डिप्लॉइड सेल रो सबुडा अच्छा oogonia तापरे डिवीजन न होगी साइज रे केवल बड़ होउछ बाय accumulating nutrient from the surroundings एवं साइज रे बड़ होला पर एटा प्राइमरी oocyte so there is no difference genetic difference between oogonia and primary oocyte केवल प्राइमरी oocyte रे साइटोप्लाज्म ता अधिक अछि then primary oocyte undergoes to successive division first meiosis 1 रे एटा प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte गोटे होछि बड़टा आ पोलर बड़टा छोटो एटा होछि अनइक्वल डिवीजन अनइक्वल एथिबे हिची ना पोलर बॉडी रे पाखा पाखी साइटोप्लाज्म किछि नाही एवं सेकेंडरी oocyte रे साइटोप्लाज्म सफिशिएंट अमाउंट रे थाए अच्छा पोलर बॉडी टा सबले डैमेज हो जाए तापर सेकेंडरी oocyte टा कोन करछि ना सेकेंडरी oocyte टा द्वितीय मेयोसिस की जाउछि मेयोसिस 2 एटा गोटा होछि मैच्योर्ड ओवम आ गोटा ला सेकेंड पोलर बॉडी तो सेकेंड पोलर बॉडी बा फर्स्ट पोलर बॉडी दीटा को डैमेज हो जाए एटा को अदरकारी जिंसडा को एवं केवल ओवम टा काम करे एवं ओवम टा सेकेंडरी oocyte गोटा सेकेंड हॉल्ट गोटा करथा मेटाफेज 2 रे एवं स्पर्म जेते फर्टिलाइज करूची तापर से तार आगु जाय कि एटा फॉर्मेशन करूची एवं फास्ट मेयोसिस रे मध्ये गोटा हॉल्ट अछि जोटा कि हमर डिप्लोइडिंग स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 रे थाए एटा आगु जाउची ए भली भाव रे तो हमें देखिबा जे oogenesis और स्पर्माटोजेनेसिस रे बहुत सारा डिफरेंस अछि साधारणतः oogenesis टा ओभारी भीतर पूरा कंप्लीट होनी oogenesis टा स्टार्ट होची ओभारी भीतर किंतु कंप्लीट होची फलोपियन ट्यूब भीतर